Once again, welcome on our YouTube channel, Yogik Samaj. So today we have our special guest, Dr. C.P. Singh sir from LNIP. Sir, welcome. Thank you very much, sir. On our YouTube channel. So, sir, without wasting your time, we are going to start. So, sir, please introduce yourself. Right. Dr. Altaf. I am Dr. C.P. Singh, Associate Professor from LNIP Gwalior. Right now I am working in LNIP. I'll give my introduction that I am born and brought up in Udaipur, Rajasthan. I did my schooling from St. Paul's. Then I joined LNIP in 1980-81. Okay, sir. So from 81 I was as a student till 86. Then I passed out and I went to Udaipur and joined Palace School, Maharana Mewar Public School, as an hostel warden, not as PE, hostel warden, because I was injured, so I joined as hostel warden. But I did all the work of physical teacher. So that was brief introduction. My father was director sports. He was senior most director sports of India. He was vice president of Directors Association. And my mother was housewife, but she was lover of sports. Then I have 3 brothers and 3 sisters. All are national players. Everybody represented the Rajasthan team. And my son, adopted son, he played for India campaign hockey in under 17. Okay. So that was the background that my whole family belongs from sports background. My uncle was, at that time, he was a national record holder in athletics. So like that, we all are from sports background. So that promoted me to join physical education. Okay. My brothers and sisters, they motivated me. My father supported me. My mother motivated me, and I joined LNIP in 1980-81. Okay. So till 86 I was there. I passed out. Did my graduations, post-graduation and PhD from Udaipur University. Okay. Yes, physics. मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा सर का इंट्रोडक्शन सुनते ही पता चल रहा होगा कि सर कितने स्पेशल हैं हमारे इस आज की इस प्रोग्राम में, क्योंकि सर की फैमिली जो है एक एक करके सर ने जैसे बताया डिफरेंट स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इवन इंडिया कैंप में भी हॉकी की टीम उन्होंने जैसे उन्होंने बताया है तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सर से हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, सर ने जैसे पहले स्टार्ट कर ही दिया है कि सर का जो फिजिकल एजुकेशन में आना यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो सर के पापा खुद ही के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो अब सर तो फिजिकल एजुकेशन में उन्हीं के थ्रू ही प्रमोट हुए। लेकिन फिर भी अब सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जब आपने 1981 का जिक्र किया कि आप फिजिकल एजुकेशन में आपने कदम रखा और फिर आज 2024 का फिजिकल एजुकेशन, तो ये तो हम सर आपका एक्सपीरियंस जानेंगे और फिर सर साथ ही साथ में आप ये भी हमें बता दीजिएगा कि उस टाइम के फिजिकल एजुकेशन में और 2024 के फिजिकल एजुकेशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? Altaf, I would like to speak about my journey of physical education that I passed out in 1986 from LNIP. Then as soon as I passed out, I joined school, Maharana Mewar Public School in Udaipur. It is one of the best school of Udaipur. So I joined there. I worked with the residential boys and did all physical activities and organized all intramural games. Because whatever we learn, that has to be incorporated on small age children. So we organized all intramurals there. Then after I worked only for 1 year. Then I joined Amravati University as assistant professor in 1987. So 87 to 90 I was assistant professor in Amravati University, and that the institute is known as Hanuman Akhada, that is HVP. And I am lucky enough and I am proud to say that
Hanuman Akhada is one of the best private institution in the country, where plus 10,000 students were doing their BPA, DPA, CPA, MP, PhD, MNU, all courses were there. And around the country, every state was there as in training for physical education. So not less than from each state there were 300 students from each state were there as students in that institution, and that experience taught me real physical education which is required for government schools or in school area, because we can say that if practically I talk to you, मैं अगर practical आपसे बात करूं तो जो शिक्षा स्कूलों में जिसकी आवश्यकता है, जिन खेलों की आवश्यकता है, जिन गतिविधियों की आवश्यकता स्कूल में है, वो आपको वो सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि वही काम आएगा. I am proud of my institution LNIP. We are best in theory, but we are weak in practicals. Practicals means Indian sports like kabaddi, kho-kho, indigenous activities like dumbbell, lazim, gaddafari, dhal talwar, atya patya. These games are very popular in the country, in government schools. So we should promote these Indian activities, because अगर हम रामायण महाभारत की बात करें तो उस समय भी डांड बैठक, गद्दा फरी, ढाल तलवार, गदा, मतलब हाँ तैराकी, आर्चरी, तलवारबाजी, ये सारी गतिविधियां थी. तो बाजूबल को मजबूत करने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए हमको ये गतिविधि को अपनाना चाहिए. आप शिवाजी का नाम लेंगे, पूरा महाराष्ट्र शिवाजी की सारी सेना वो लेजिम से अपनी फिटनेस करती थी, डंबल से अपनी फिटनेस करती थी. तो ये गतिविधियां जो है बिना खर्चे से, बिना कोई आपको ज़्यादा स्थान भी नहीं चाहिए, उसको जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, और हर प्रधानाध्यापक आपको कहेगा कि आप हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई शारीरिक गतिविधियां हमारे बच्चों को सिखाई जाए. तो हम क्या करते हैं, मास पीटी कराते हैं, दैट्स ऑल. बट आप ये जो इंडियन एक्टिविटीज है, देसी जो गतिविधियां हैं शारीरिक दक्षता को डेवलप करने के लिए, वो यही है, बिना खर्चे से कम स्थान में आप स्कूल के बच्चों को फिट बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, आप उनको शारीरिक शिक्षा की तरफ आकर्षित कर सकते हैं. तो मैंने यही काम स्कूल में किया था. फिर मैंने ये सीखा वहाँ पर अमरावती यूनिवर्सिटी हनुमान अखाड़ा में, और वहाँ से मैं सीख करके अगेन मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जो है उदयपुर का सबसे बड़ा 1991 में, आई एम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट स्पोर्ट्स स्कूल, एंड आई वर्क फॉर 21 years as a sports principal for physical college in BN College of Physical Education. वो राजस्थान का सबसे बड़ा फिजिकल कॉलेज है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर से लेकर के PhD तक की शिक्षा वहाँ हमने शुरू की है. I was the first principal and first stone was laid down by me. So 21 साल I was 21 साल में एक ही कुर्सी पे बैठा रहा. Then सबने बोला कि अरे CP सिंह जी, आप कुएं के मेंढक मत बनो, अगर आप में कुछ अच्छा है तो इस एजुकेशन को स्प्रेड करो बाहर, खाली आप एक इंस्टीट्यूशन में मत रहो. बिकॉज जब when you move outside you gather honey, जब आप बाहर निकलोगे तो शहद इकट्ठा करो. तो वही फार्मूला मैंने अपनाया कि मैं एक ही कुर्सी पे 21 साल तक एज अ प्रिंसिपल बैठा रहा. तो लेट जूनियर्स कम टू टेक ओवर, let other staff get this responsibility of this chair, and they should come with new plans. नए प्लान्स के साथ में बंदा बैठेगा. मैंने 21 साल तक मेरा प्लान एग्जीक्यूट किया, लेकिन हो सकता है मेरे से कुछ नया जनरेशन अच्छा प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए. तो I quit that chair and I gave interview for Central University Srinagar. So my father told me that CP, you should join in university, in any of the university in the country. So because right now you are working as a principal in a college, but when you switch off to university, you will learn something more. You will add in your intelligence, right?
So I joined in Central University Srinagar as Director Sports. Okay. So I was first appointed in the country. I was first director to be appointed in Central University of the country. There were 32 Central University and the post was only one. And that was Central University Srinagar, Uttarakhand. In the whole country, only one One post. first post was declared by MHRD ministry. So luckily, with the blessings of Almighty God and with the blessings of my mother and father, I was appointed as a Director Sports in Central University Srinagar. So there I worked for 8 years as a Director Sports. And I was very lucky enough that I got the opportunity to work on infrastructure development. Because that was hilly zone, Uttarakhand, Srinagar, that was backward area in this. New university has come, Central University was opened, but they were not having any play fields, no playgrounds, no sports equipment, nothing was there. Simply it was a college. Okay. Then my Honorable Vice Chancellor, he was also from Kashmir, Professor Kaur. He told that you should work for this university and you prepare the proposals. So when I visited that area, that was hilly zone, like this. They told me that this is the land and you have to do physical activities and develop a complex, sports complex. So we planned like that, vertical, where somewhere horizontal, somewhere 2 stories, 3 stories, indoor halls, like that. So I made 10 proposals after that. And thanks to the university administration of Hemanti Nandan Bahuguna University, Central University, that they supported me. Okay. They told that, doctor, you go ahead, don't worry about money, finance part, just you prepare the proposal and start working on sports complex. Exactly. So I started, I planned, I designed with the help of engineers and state officers, and I discussed with the registrar, I discussed with finance officer, I discussed with the Honorable Vice Chancellor, I discussed with the national players of Uttarakhand that what type of infrastructure we should frame. So I planned, I showed my plan, I presented my plan on the screen that this is the work I am going to do in 5 years. 5 years. This was my 5-year plan, that I want to develop a sports complex in 5 years only. So they committed me that don't worry about finance, you go ahead. Then that motivated me. Somebody is there that files are stuck only of finance, but finance was positive towards me. So I worked day and night, and out of 10 proposals, in 7 years, not in 5 years, in 7 years I have completed 8 proposals. I have completed 8 proposals with athletic track, hockey field, cricket field, 2 indoor badminton court, 1 multi-purpose gymnasium, a table tennis hall with the latest updated facilities. 2 projects were left. As you know, in 2014 वो जो गंगा जब बाढ़ आई थी, उत्तराखंड ट्रेजेडी हुई थी, उसमें माई ट्रैक स्टेडियम फॉल फ्रॉम 150 फीट हाइट। 150 फीट से आधा स्टेडियम नदी में गिर गया, क्योंकि नदी के बैंक ने काटना शुरू किया, तो ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग माई हाफ ऑफ द स्टेडियम वेंट इन द रिवर, वो मतलब नदी में गिर गया। तो टू मेंटेन अगेन वी हैव स्पेंडेड more than 40 crore rupees, and that 40 crore rupees के कारण हमारा स्विमिंग पूल एंड एक मल्टीपर्पज हॉल इंक्लूडिंग 10 इंडोर गेम्स वो बनना बाकी रह गया, बिकॉज दैट पैरापिट वॉल वाज मेड 180 मीटर लॉन्ग, 14 feet height, so money was spent on that. So that 2 proposals were left, otherwise 8 proposals I have completed. Red ribbon was tied and I quitted from Central University, and I was lucky enough to join my alma mater, LNIP. So my father told that now you are on the last phase of retirement, last 5 years,
So you have learned from LNIP. आपने LNIP से सब कुछ सीखा है. You have earned lakhs of rupees by working as an assistant professor, associate professor, then director sports. What you have given back to your LNIP? आपने अपने LNIP को क्या दिया रिटर्न में? I have not gone there. तो no, this is not fair. आपने इतने लाखों रुपए कमाए हैं, तो just go and work in LNIP if you get a chance. कि आपको पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कद नहीं चाहिए, बट हमारा ये रहेगा कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने जहाँ से सीखा है उसमें मैं अपनी सेवाएं दूं, मेरे अनुभव छोटे बच्चों को शेयर करूं, नए जनरेशन को शेयर करूं, और मैं इस थीम को लेकर के आई लेफ्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर एंड आई जॉइंड LNIP एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स अगेन. I was there for 4 years as a director sports. Now I am head of that. I am sharing my all experiences with first years, second years. I am taking class of first years, second years, UG, PG, diploma. So I am feeling very happy. And do you know, I am the youngest man of LNIP with the age of 60 right now. Really? 60, and I am always on toes. You can see me. I am always on toes. I have in morning also I have worked out. Exactly. I did my walking, jogging and everything. And I am always on toes. I love cycling and my cycle made me fit. So मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा सारी नई जनरेशन के कि चलते रहो, हाथ भी चलाओ, पाँव भी चलाओ, दिमाग भी चलाओ, तो you will be happiest person of the world and healthiest person of the world to make others healthy. Okay. आप दूसरों को स्वस्थ बनाने के लिए आपको पहले स्वस्थ बनना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को, बच्चों को आप कैसे स्वस्थ रहा जाए उसके टिप्स दे सकते. तो that was my brief journey about my working, and I am enjoying LNIP. Another 2 more years before getting retired. I want to give whatever I have, whatever experience I have, I want to give all to the new generation of physical education. And even I learn at the age of 60 also I learn from students. मैं बच्चों से सीखता हूँ, जो हमने नहीं सीखा वो आज की जनरेशन सिखा रही है. हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, साइंटिफिक लैब नहीं थी, इतना अच्छा मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं थी, अपडेटेड अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी, जर्नल्स नहीं थी. लेकिन आज की जनरेशन इन सबको सुविधा मिल रही है. आज की जनरेशन को तो इवन नई नई चीज़ें जो हमारे ज़माने में नहीं थी शारीरिक शिक्षा की, वो आज की जनरेशन से मैं भी सीखता हूँ और मैं उसको अपने जहन में उतारता हूँ और आई शेयर विद अदर्स. तो यही तरीका मेरा स्वस्थ रहने का और फिट रहने का और इस शारीरिक शिक्षा की देने का. मतलब मुझे कहना चाहिए कि वी ऑल आर लकी इनफ दैट वी हैव चोजन दिस प्रोफेशन. इस प्रोफेशन को हमने चुना, हम सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि जो लोगों ने शारीरिक शिक्षा को एज ए प्रोफेशन चुना. मैं ये कह सकता हूँ वी आर वर्किंग विद हेल्दी पीपल. हम बीमारों के साथ नहीं काम करते, हम स्वस्थ व्यक्तियों के साथ में काम करते हैं. सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. Sure. वो इसलिए कि हम एक एक करके ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे सर से. अगर सर आज हमें मिल चुके हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, और जितने भी हमारे व्यूवर हैं, मैं आप सभी से यही मतलब कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की खुशकिस्मती है कि सर जब आपने एक्सपीरियंस ही बता रहे थे तो बताने में ही सर के जज्बात और वो फेस एक्सप्रेशन हमें बता रहा था कि सर कितने मतलब हार्ड वर्कर हैं. और सर का एक अपने जो वर्क की टूवर्ड्स जो कंपैशन है, जो सर का जो कितना मतलब वो स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन है, तो ये चीज़ तो रही ही है. हम सर से अभी यही इसी चीज़ पे हमें जानेंगे कि सर ने अपना जो ये एक्सपीरियंस दिखाया है, ये हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी कितना हार्डवर्क करना है और करना चाहिए, और अपने फील्ड पे कितना लॉयल्टी हमें मतलब दिखानी है. सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर ने जब फिज़िकल एजुकेशन में कदम रखा, वो मींस 1981 की बात है, और आज 2024, सर 2 लाइन में ये डिफरेंस फिज़िकल एजुकेशन में अगर सर आप बता देंगे कि उस टाइम का फिज़िकल एजुकेशन क्या था और अब का फिज़िकल एजुकेशन क्या है, हम सर से ये जानना चाहेंगे. जरूर. थैंक यू साहब, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब हमने ज्वाइन किया था तब हमको यही
बताया गया था कि यू विल बिकम फिजिकल एजुकेशन टीचर. इट वाज renamed as PET. Before that it was PTI, Physical Training Instructor. So our time we were known as PTIs. But after that it was converted that no, we are not training instructor, we are education teachers. We are dealing with physical education. We are imparting knowledge about physical education to the student. तो उस समय इतना डेवलप नहीं था. जस्ट हमको ये सिखाया जाता कि आप स्कूल में नौकरी मिलेगी आपको या कॉलेज में नौकरी मिलेगी और आपको ये गतिविधियां करनी है, ये खेल सिखाने, उसकी बेसिक नॉलेज, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी उस समय. उस समय खाली कि हाँ आपको ये फुटबॉल सिखा रहे, फुटबॉल की बेसिक स्किल्स आना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाओगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, ये बेसिक चीजें जो थी. और वो भी सारे गेम्स में नहीं. नाउ वी हैव लॉट मेनी गेम्स, बट पहले तो 10 मेजर गेम्स हुआ करते थे, 12 मेजर गेम्स हुआ करते थे. बस उसकी बेसिक नॉलेज जो है 1980 में हम लोगों को दी जाती थी और हम वो ही सोचते कि यार हमने बहुत कुछ सीख लिया है. ग्रेजुएशन किया, पीजी किया तो भी हमारे पास वो 16 मेजर गेम्स की ही नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज. वी वर नॉट एन एक्सपर्ट्स, वी वर ओनली जैक ऑफ ऑल. भैया स्कूल में हमको जाना है, कॉलेज में जाना है, हमको ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है या ये गेम बच्चों को सिखाना है, तो वो उतनी नॉलेज ही थी हमारे पास. एंड उस समय इतना डेवलप्ड साइंटिफिक लैब्स नहीं थी, डेवलप्ड लाइब्रेरीज नहीं थी, डेवलप्ड मतलब बहुत सारी साइंटिफिक बुक्स नहीं थी. हमारा जो एक्सपोजर था वो बहुत लिमिटेड था उस समय. नो डाउट ऑल द स्टाफ मेंबर्स वर फॉरेन रिटर्न फ्रॉम जर्मनी in LNIP during our time. All they were genius people, but जो नॉलेज थी उनको बहुत थी, लेकिन स्कूलों में वो एडजस्ट नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि वो साइंटिफिक नॉलेज स्कूलों में कहीं काम नहीं आए. ओके. स्कूलों में तो उनको वही आपको फुटबॉल सिखाना, बास्केटबॉल सिखाना, वॉलीबॉल सिखाना. अगर आपके पास अच्छा स्कूल है तो आपको इंडोर कोर्ट्स मिल जाएंगे. अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ तो ना जमीन है, ना जायदाद है, ना खेल मैदान है, ना इक्विपमेंट है, ना बजट है. लेकिन फिर भी आपको कुछ सिखाना, तो बच्चा क्या करता, मार्च पीटी सिखाएगा, कबड्डी सिखा देगा, ज़्यादा एक बॉल के साथ वॉलीबॉल खिला देगा, एक बॉल के साथ में फुटबॉल खिला देगा, खो खो कर देगा. बस ये जो इंडियन गेम्स थे उसी तक सीमित रह गया. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रेजेंट एरिया. अल्ताफ, दिस जनरेशन इज वेरी लकी. वो बहुत लकी है कि उनको वो सुविधाएं मिल रही है जो हमारे टाइम में सुविधाएं नहीं थी. हमारे पास जुनून था, जज्बा था, मेहनत करने का वो एक जज्बा था, अनुशासन था, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन के साथ में सब कुछ हमारे पास था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी. इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने स्टेडियम्स नहीं थे, इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था. बहुत सारे जो कोचेस थे, लर्नर इंटेलिजेंट कोचेस, वो ओनली टॉप टीम्स के लिए थे. हमको तो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर जितनी उनकी नॉलेज थी वही हमको इम्पार्ट करते थे. हमारे को जितनी नॉलेज हुई वो हम बच्चों को इम्पार्ट करते थे. लेकिन आज की जनरेशन को यू कैन सी डेवलप साइंटिफिक लाइफ. नाउ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट फिजिकल, इट इज अ साइंस बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल. ये जो जितने डिसिप्लिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहे हैं ना अभी की जनरेशन को. ये जो नॉलेज है अबाउट एनहांसिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन प्ले फील्ड, ये सारा साइंटिफिक हो गया है. तो ये जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वी आर वर्किंग, बट यू विल वर्क बेटर देन अस बिकॉज वी वर वर्किंग फिजिकली. You will work scientifically, psychologically. You will see all the parameters like biomechanics, physiological parameters, how to enhance performance of an athlete and a sportsman. You can deal with all disease, deformities, rehabilitation by your scientific knowledge. Exactly. तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अल्ताफ कि अभी की जनरेशन they will do wonders to enhance the performance in Indian sports culture. So you will make sports as a culture. Exactly. हमारे टाइम में कल्चर नहीं था, but now you will make as a sports as a culture कि ये अभिन्न अंग हो जाएगा हर बच्चे को कि साइंस को जोड़ करके हम फिजिकल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करेंगे and that will increase our performance in Indian scenario. Exactly, sir.
मैं इसी पे सर एक चीज़ और सर से शेयर करना चाहूँगा। जैसे गवर्नमेंट साहब जो हमारी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट वो फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान दे रही हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्पेशली फोकस किया गया है इन चीज़ों को, और बहुत प्राइमरी लेवल स्कूल्स जो है वहाँ तक फिजिकल एजुकेशन को लेके गया है। लेकिन ये तो अब होने जा रहा है और अब वो कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं मीन्स। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन जो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे जब से फिजिकल एजुकेशन का स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट, तो तब से फिजिकल एजुकेशन तो ये चीज़ बोलता आ रहा है, लेकिन अब चलो ये हमारे भी मतलब खुशकिस्मती है कि हमारा फिजिकल एजुकेशन को प्रमोशन मिला है और इतनी रिस्पेक्ट मिली है और ये सारी चीज़ें। सर अभी हमारा एक क्वेश्चन बाद में आएगा। मैं सबसे पहले अभी कुछ पार्ट उसका स्टार्ट हो चुका है, मैं इसलिए इस पर पहले आ गया हूँ सर। वो इसलिए कि हमारे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो सारे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं होते, सारे फिजिकल एजुकेटर नहीं होते, तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग कोई फिजिकल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट रखता है, बट एक सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में वही स्टूडेंट जाता है, वही बच्चा जाता है जिसको बाकी कोई सब्जेक्ट आता नहीं है, जिसको मतलब बस खेलना कूदना जिसका काम है, वही फिजिकल एजुकेशन में मतलब अपना करियर जो बनाना शुरू कर देता है। और फिर कहीं जगह पे ये भी होता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, तो उनको वो रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखा जाता एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ऐसा फिजिक्स वाले को, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो ये मैं सर से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, या सोसाइटी में कोई इस तरह का है वो मतलब कहाँ पे हम। अल्ताफ, आई वेरी क्लियरफाई टू यू कि हमने पहले भी बोला कि वी आर लकी इनफ दैट वी हैव जॉइंड दिस प्रोफेशन, और हम स्वस्थ व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड मेडिकल साइंस। एग्जैक्टली। तो आप जब कहते हैं ना कि डॉक्टर्स आर गुड, इंजीनियर्स आर गुड, तो वो सारे सब्जेक्ट तो हम हमारे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। हम मोर देन 7 सब्जेक्ट्स ऑफ मेडिकल साइंस वी आर स्टडीइंग इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, lot more, sports nutrition, health hygiene. So we are not less than doctors. In MBBS course, the same subject we are learning in Masters of Physical Education. So we are not less than them. For engineering course, we are learning mathematics, algebra, statistics, and everything we are learning. For art, social sciences, for commerce, for science, we are learning everything. So we are not less than other disciplines. So physical education, as I told you, it is combination of art, science, commerce and medical science. So we are not less than others also. And we love our profession. Those who have little knowledge about physical education, they will surely support you, and they will like to participate in physical activities because now health is wealth. खेल खेलो स्वस्थ बनो। जितने ज़्यादा खेल मैदान उतने कम अस्पताल। जिंदगी जियो हंसते और खेलते। तो ये जो लोकोक्तियाँ हैं, ये फ्रेजेस हैं, प्रॉवर्ब्स हैं, ये ऐसे ही नहीं बने, ये हजारों साल का निचोड़ है कि भैया सबसे पहले स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। अगर स्वस्थ मन है, स्वस्थ शरीर है, तो आप खुशी से जो काम आप करेंगे वो आप उसमें सक्सेसफुल मतलब सक्सेस हासिल करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि always be fit, be energetic, have a smiling face, be intelligent, be active, always be on toes. तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? शारीरिक शिक्षा से, फिजिकल एजुकेशन से आएगी। और जो फिजिकल एजुकेशन से जिसको एक बार प्यार हो गया है, वो मरते दम तक पैदल चलेगा, हाथ चलाएगा, पाँव चलाएगा, दिमाग चलाएगा। और अभी आप कहते हैं डॉक्टर पूरा जिंदगी भर कुछ नहीं किया, लेकिन डॉक्टर के कहने पर आप सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये चीज अगर आपने जवानी में कर ली होती तो ये बुढ़ापा बहुत आगे तक जाएगा। राइट ना, अभी हमारे डेमोग्राफिक एज क्या है? 55 साल। अगर हम बचपन से हमने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एट द एज ऑफ 60, मैंने सारी जिंदगी में सारे काम कर लिए हैं, लेकिन मैंने अभी
अपना इमेज को स्वार्थी बना लिया। मैं और मेरा स्वास्थ्य, अगर मैं फिट हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो आई कैन वॉक लॉन्गर फॉर अनदर फ्यू मोर ईयर्स। तो ये जुनून जो है अब लोगों को पता चला, ये जागृति इस जनरेशन को अब आई कि नहीं, हमको कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करना चाहिए, कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई खेल खेलना चाहिए, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, खाने में भी कि भाई बैलेंस फूड खाओ, ये नहीं खाओ। अभी यंग जनरेशन हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट in every city Yog Pranayam is going on for health and happiness. That everybody is there right from 4 o'clock, भोर से 4 बजे से 8 बजे तक everybody is on toes walking wherever they are getting space. आप बागान देख लो, नदी किनारे देख लो, तालाबों के किनारे देख लो, फ्री जोन एरिया में देख लो, खेल मैदानों में देख लो, मॉर्निंग में लोग अब आकर्षित हुए कि नहीं, हमको वॉकिंग जॉगिंग से अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। एंड यू आर सेविंग क्रोर्स ऑफ अमाउंट, योर आर्ट ऑनेस्ट सैलरी जो है, आपने 35 साल की नौकरी जो की है उसमें लाखों रुपए आपने कमाए हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप फिट नहीं है, तो आप ये सारा जो आपका जो अमाउंट बचा के रखा है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, वो सारा आप पैसा डॉक्टर की जेब में जाता हुआ देखेंगे। Do you know how costly is your heart, kidneys, lungs, all system कितने costly हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएगा अच्छा किडनी रिप्लेस करना इतना लाख रुपए, हार्ट का सर्जरी करना इतना लाख रुपए। Why you want to give your hard earned money to doctors? आप डॉक्टर के पास ना जाएं, इसके लिए आप थोड़ी सी वर्जिश कर लें, give some time, कुछ समय अपने लिए दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं कुछ समय अपने शरीर को देता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। मेरा पैसा जो है बीमारियों पे जो खर्च करने वाला है, खुद होने वाला है, वो मैं ना खर्च पाऊँ और मैं उस पैसे को संचय करके, बचा करके अपने बच्चों के लिए संचय करूँ या मेरे फ्यूचर के लिए संचय करूँ। तो कहने का तात्पर्य कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप करोड़पति हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका जो करोड़ों रुपया जो है वो आप वेंज में डालने वाले हैं, डॉक्टर्स को देने वाले हैं, और अंतोगत्वा आपकी दुर्गति ही होने वाली है। आपको बीमारी में कोई सपोर्टर नहीं मिलेगा, घर वाले छोड़ के चले जाएंगे, भाई भतीजे छोड़ के चले जाएंगे, परिवार कुटुंब परिवार छोड़ के चले गए, क्योंकि आप बीमार हैं। तो लोग स्वस्थ व्यक्तियों के पास रहना ज्यादा पसंद करेंगे, जो मुस्कुराता है, खुश रहता है, हेल्दी है, फिट है, बातचीत करने में दो झप्पी मारता है, उनके साथ लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आपने देखा बुढ़ापे में आपके पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो कहने का तात्पर्य बी फिट, बी एनर्जेटिक, बी हेल्दी, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटीज। तो इस जहान में आप आए हैं, भगवान ने आपको इतना अच्छा जन्म दिया है, तो उसका उपयोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर कीजिए। मैं तो सारी नई जनरेशन को कहना चाहता हूँ, बी क्लोजर टू प्ले फील्ड्स, love your grounds, love your sports equipment, and always do some or other activity for morning 1 hour and in evening 1 hour. तो ये जो 24 घंटे में अगर हम 2 घंटा शरीर को देंगे तो वो अनदर 24 घंटा और आगे हमारी एज में हिफाजत करेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लव स्पोर्ट्स, कीप योरसेल्फ बिजी ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे। श्योर। जो भी हमारे फिजिकल एजुकेटर हैं, जैसे हमारे बीपीएड के बच्चे हैं, एमपीएड के हैं, मोस्टली मीन्स जो बच्चे हैं वो यहीं से क्विट कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए जो इंटरेस्टेड होंगे वो पीएचडी के लिए चले जाएंगे या फिर कोई डिप्लोमा के लिए चले जाएंगे, NS कर लेंगे, तो ठीक है। सर से हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बीपीएड क्विट करके हमें जॉब करना चाह रहे हैं, वो उसकी कोई भी वजह रही है, वो आगे का अपना एजुकेशन जो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो करना चाह रहे हैं, या एमपीएड ही करके वो अपना कोई जॉब करना चाहते हैं, जैसे एनबीएस में, केवीएस में, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी जॉब्स गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो हम सर से ये जानना चाहेंगे कि वो बच्चे पहले से मेंटली या फिजिकली तो कैसे पहले से प्रिपेयर करें अपने आप को कि वो स्कूल में जाके अपना बेस्ट दे पाएँ और अच्छा टीचर और रोल मॉडल आने वाली जनरेशन के लिए बन सकें। Yes. जी। तो Altaf, I'd like to speak on this topic. First of all,
एजुकेशन इज नेवर कंप्लीटेड, इट इज फ्रॉम बर्थ टू टॉम। Exactly. मतलब जिंदगी शुरू जब होती है और आप मरते हो तब तक आप कुछ सीखते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन फील्ड को चुना है तो यू कंप्लीट ऑल डिप्लोमास डिग्रीज whatever are there in physical education। आप अधूरा रास्ता में छोड़ देंगे तो आप अधूरी नॉलेज को छोड़ रहे हैं। इसलिए कि मेरा कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं तो यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन। नाउ डोंट वरी, नाउ मदर फादर दे आर सपोर्टिंग विद फाइनेंस। उनको ये कहना है कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए जिस भी एरिया में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो और पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मेरे फादर के पास उस समय कम पैसा था, लेकिन स्टिल ही वांटेड दैट यू शुड स्टडी एंड कंप्लीट योर ऑल डिग्रीज। ग्रेजुएशन भी करो, मास्टर्स भी करो और पीएचडी भी करो। मैं इस जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि रास्ते को अधूरा ना छोड़े। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन है, पीजी है, पीएचडी है, तो एटलीस्ट दीज 3 डिग्रीज यू शुड परचेज फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है ना। हमारे टाइम में हायर एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन आज का तो हर मास्टर डिग्री का बच्चा वो पीएचडी के लिए ललायत है, पीएचडी करें, वेरी गुड, they should go for PhD, they should go for research work, they should become a sports scientist। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एजुकेशन को बीच में मत छोड़ो। If you have entered physical education, then you should complete all the degrees related to this discipline, then only you can become master of that physical education। So मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि complete your PhD and become research scientist। You do research on different areas, on different students, on different males and females, on different age groups, work on Indian teams, work on state teams, work on national teams as a psychologist, as a physiologist, as a trainer, as a coach। तो ये कई एरिया हैं जिसके कारण हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं और नई जनरेशन में अच्छा ज्ञान दे करके उनके परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको कड़ी मेहनत करना है। स्कूल लेवल पे हमको पीटी ने जो सिखाया वही हमारे नेशनल लेवल तक काम आया। अगर उस समय हमको नेशनल कोच स्कूल में मिलता तो हम और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा इंडिया में ड्रॉबैक है कि हमारे जो ए क्लास कोचेस हैं, दे ट्रेन ओनली इन 15 days or 1 month camp and they go away। Their task is of training only 1 month, but we forget that at the base level, grassroots level पे हमको जिस पीटी ने सिखाया है उसका बहुत बड़ा रोल है कि बेसिक उसने सिखाया है। जो बेसिक गुण है, खेल के नियम है, स्किल्स है, स्ट्रेटजीज है, गेम प्लान है, टेक्निक्स है, वो हमको स्कूल में सिखाया पीटी ने। हम उसको भूल जाते हैं और हम सीधा वी गिव क्रेडिट टू नेशनल कोचेस। मैं आपसे भी, सरकार से भी और कई जगह मैं इस चर्चा में ये जरूर बोलता हूँ कि काइंडली डेप्यूट योर हायर परफॉर्मेंस कोचेस, ए ग्रेड कोचेस टू सेलेक्टेड स्कूल्स फॉर सेलेक्टेड गेम्स। आप कुछ स्कूल अपने स्टेट में, आपका यूपी है तो यू सेलेक्ट 5 बेस्ट स्कूल्स फॉर 5 बेस्ट डिसिप्लिन। वो जहाँ पर फुटबॉल का एनवायरनमेंट है उस स्कूल को चुन लो, जहाँ क्रिकेट का है वहाँ चुन लो, जो हैंडबॉल का है, वॉलीबॉल का है, एथलेटिक्स का, ऐसे पूरा यूपी में आप यू सेलेक्ट 5 to 10 schools and you depute, government should depute their A class coaches to train that at grassroots level। वो छोटे बच्चों को आप अच्छे से ट्रेन कर लोगे तो वो तेजी से परफॉर्मेंस उनका हाई होगा। तो ये ड्रॉबैक है हमारी इंडियन में, इसमें कोचिंग एरिया में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी सीनियर कोचेस हैं, एक्सपीरियंस कोचेस हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको यू शुड डेप्यूट इन स्कूल्स टू ट्रेन स्मॉल चिल्ड्रन, so they will give better result in their future, in coming 7 years, coming long term plan में 14 years they will become national champion। So that is my request to all of you। सर का ये बहुत बड़ा एक मैसेज था गवर्नमेंट के थ्रू, इस हमारे इस चैनल के द्वारा। दूसरी तरफ सर का ये जो हमारे स्कूल के टीचर्स जो बने जा रहे हैं, बीपीएड या एमपीएड पास हो बच्चे, उनके लिए सर का जो बहुत बड़ा मैसेज था कि जो स्मॉल बच्चे स्कूल से जो जाते हैं पास हो के और वो स्कूल में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उन बच्चों पे मतलब जितनी भी मेहनत की जाए और वो आगे दिखती है, वो नेशनल लेवल पे उसमें किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो ये हमने सर से बहुत कुछ सीखा। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि
you should look like a teacher. You should look like a physical teacher. आपकी body language, आपकी knowledge, आपका way of presentation, आपका dress code, आपका behavior, आपका character, your lookout, your बोलने का तरीका, चलने का तरीका, activity को presentation का तरीका, पढ़ाने का तरीका, ये सारे one of the best होने चाहिए. Then only you can become a good physical education teacher, or you can become a good sports personnel at university level, college level and in the country. So मेरी आपसे यही गुजारिश है, first of all look to yourself. आप अपने आप को देखिएगा कि आप मिरर में कैसे लग रहे हैं. Are you looking like physical education teacher? Are you looking like assistant professor? Are you looking like director sports? Then only put your steps out of the room. Otherwise come back, dress up yourself. आप अपने आप को तैयार कीजिएगा. That you should look like a sports personnel. You should become a role model for everyone. कि लोग आपको देख करके सीखें कि मेरे को सर जैसा बनना है, मेरे को सर जैसी ड्रेस कोड होना चाहिए, सर जैसा बिहेवियर होना चाहिए, सर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, सर जैसी नॉलेज होनी चाहिए. जब तक ये बच्चे ये समझ नहीं आएंगे तब तक यू आर नॉट रोल मॉडल फॉर देम. बच्चे आपसे सीखना चाहिए, सीखना चाहते हैं और चाहिए. ऐसा आपको अपने आप को मोल्ड करना है, ढालना है. तो आपको बहुत समय है. आप अपने आप को परिपक्व कीजिए, ढालिए एंड बिकम द रोल मॉडल फॉर न्यू जनरेशन. सो दैट वर माय मैसेज टू अल्ताफ. थैंक यू वेरी मच अल्ताफ. आपने कीमती समय दिया हमें. थैंक यू सर. श्योर. और थैंक यू टू ऑल हमारे व्यूअर्स. थैंक यू सर. Thank you very much अल्ताफ. Nice meeting you. It was nice to deliberate, discuss about physical education. Thank you very much. See you soon. I never say goodbye. I say फिर मिलेंगे. Thank you. Awesome.